नमस्कार बाल मित्रों, कैसे हैं सब। सोरठ पब्लिक स्कूल में आप सबका स्वागत है। स्टैंडर्ड 6 हिंदी। आज का आपका विषय है हिंदी और आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर एक लोक कविता है। तो पहले मैं आपको ये मातृभाषा में समझा देती हूँ कि ये जो काव्य है उसमें वो क्या कहना चाहता है, क्या सीख मिलती है इस काव्य से। तो पहले हम मातृभाषा में समझेंगे, बाद में हिंदी टू हिंदी, ठीक है। अब देखिए, एक जगत एक लोक। यह कवि क्या कहते हैं कि આ સંસાર એક માનવ લોક છે। આ દુનિયામાં રહેનારા સૌ લોકો, આ દુનિયાની અંદર જે લોકો રહે છે એ બધા જ લોકોને એક સમાન આદર માનના અધિકારી છે। એક સમાન, બધાને એક સરખી રીતે માન મળવું જોઈએ। કોઈ ઊંચ નથી, કોઈ નીચ નથી, બધા એક સરખા માન અને આદરના અધિકારી। હવે કવિ આગળ કહે છે કે રાત્રે એક જ ચંદ્ર આખા સંસારમાં પોતાની ચાંદની રે લાવે છે। દિવસે એક જ સૂર્ય એ સમગ્ર સંસારને પ્રકાશિત કરે છે। આપણે સૌ એક જ ધરતી પર અને એક જ આકાશની નીચે અહીંયા રહીએ છીએ। આપણને મળતા જે પ્રકાશ, હવા અને પાણી છે એ એક જ છે। હવે એટલું જ નહીં, પણ આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સમાન છે। આપણા શરીરની રચના એક સમાન હાડકાથી થઈ છે। આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા છે। શું કહે છે કવિ કે આપણને જે હવા, પાણી અને પ્રકાશ મળે છે એ બધાને ઈશ્વર એક સરખા આપે છે। એક સરખી હવા મળે છે, એક સરખું પાણી અને એક સરખા પ્રકાશ મળે છે। પણ એટલું જ નહીં, આગળ કવિ શું કહે છે કે આપણા સૌના જીવનમાં સુખ દુઃખ પણ એક સરખા જ છે। આપણા શરીરની રચના પણ એક સમાન હાડકાથી થઈ છે। બધાના હાડકા એક સમાન છે। આપણા પ્રાણ પણ એક સરખા। શું કહે છે કવિ કે આપણા બધાના પ્રાણો પણ એક સરખા છે। આપણે આનંદિત થઈને સુંદર રાહ છોડીએ। કવિ કહે છે કે આપણે બધા આનંદમાં રહીએ અને સુંદર મજાના સુંદર રાગ છોડીએ। આપણે સમાનતા અને પ્રેમના ગીતો ગાઈએ, નહીં કે બદલો લેવાની ભાવના, પરસ્પર એકબીજાને નીચા પાડવાની ભાવના, એવું નહીં। બસ સમાનતા, સમાનતા અને પ્રેમ, ફક્ત પ્રેમ જ જીવનમાં, પ્રેમ કે પ્રેમના ગીતો ગાઈએ। દિવસ અને રાત ઘર ઘરમાં એ ગીત ગુંજે છે। આપણે સૌ એક જગત તેમજ એક લોકના નિવાસી છીએ। આપણે એક સમાન આદર અને માનના અધિકારી છીએ। સંસારના સૌ રાષ્ટ્રોમાં એકતાની ભાવના ફેલાવવી એ જ આપણા જે બધાનું મહાકર્તવ્ય છે કે વસુધૈવ કુટુંબકમ। આખી પૃથ્વી જે છે એ જ એક કુટુંબ સમાન છે। એટલે આખા સંસારની અંદર, આખા વિશ્વની અંદર અને બધા જ રાષ્ટ્રોની અંદર, સંસારની અંદર જેટલા રાષ્ટ્રો છે એ બધા જ રાષ્ટ્રોની અંદર એકતાની ભાવના ફેલાવવી આપણા સૌનું મહાકર્તવ્ય છે। આપણે સૌ હળીમળીને પ્રગતિ મળે અને માનવતાનું આપણે બધા રક્ષણ કરીએ। તો માનવ, આપણે ઘણીવાર કહેતા હોય કે જો ને એનામાં તો માનવતા હવે મરી ગઈ છે। તો માનવતા મરી જવું એટલે શું? એના માટે હમદર્દી નહીં, લાગણી નહીં, પ્રેમ નહીં, કેમ પોતાનો સ્વાર્થ સાધવો, આ બધું શું છે? તો માનવતા મરી પરવારેલી છે અત્યારે ઘણી બધી જગ્યાએ। તો આપણે બધાની અંદર માનવતા જે છે એ બધાનું, માનવતાનું રક્ષણ કરીએ, એ જ આપણો ધર્મ બને છે। હવે આપણે સૌ હળીમળી અને વિશ્વના જે વિશ્વ શાંતિ છે એ વિશ્વ શાંતિના પ્રતીક ધ્વજ સમાન બની અને એ ધ્વજને હવામાં ફેરવીએ અને એ રીતે આપણી પોતાની એકતાને સિદ્ધ કરીએ। તો અહીંયા જે માતૃભાષાની અંદર કાવ્યનો સાર કંઈક આવો છે। હવે આ આપણે હિન્દી ભાષામાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ। તો અહીંયા સૌપ્રથમ જે આ કાવ્ય છે એમાં જે નવા શબ્દો આવેલા છે એ નવા શબ્દો कि जगत, जगत का अर्थ क्या है? जो नए शब्द है उसका अर्थ जो है तो कि जगत अर्थात दुनिया, संसार। और
जगत का अर्थ दुनिया और संसार है, और लोक लोक का अर्थ भी दुनिया और विश्व है। मान का अर्थ आदर, सम्मान। भूमि अर्थात जमीन, धरती, धरा, ठीक है। तेज अर्थात प्रकाश। देह अर्थात शरीर। रक्त अर्थात खून, लहू। अस्थि अर्थात हड्डी। प्राण अर्थात जान, जीव। हर्ष आनंद। राग गीत, प्रेम के गीत। सुहाना सुंदर। समता बराबरी। ममता प्रेम। तराना तराना अर्थात गीत, तराना अर्थात गीत, गाना। निषदिन यानी कि दिन रात। मधुर मीठा। एकता कर्म, काम। प्रगति उन्नति, विकास। हिल मिल के, मिलजुल कर। निशान अर्थात चिन्ह अथवा झंडा, ठीक है। अब हम काव्य देखते हैं। सोरठ पब्लिक स्कूल में से आपको जो ये असाइनमेंट दिया गया है, इसमें मैंने ये सब जो पंक्ति और उसकी समझूती सब मैंने आपको यहाँ लिख दिया है, ठीक है। हम समझने का प्रयत्न करते हैं। आप भी जो सोरठ पब्लिक स्कूल में से आपको जो ये असाइनमेंट मिला है, उसमें से एक एक पंक्ति पढ़िए, और पंक्ति पढ़कर उसका जो उसके नीचे जो हमने समझूती दी है वो भी बार बार पढ़िए, ठीक है। देखते हैं। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत एक लोक, सबका है एक मान। सूर्य एक भूमि आसमान। एक चंद्र एक सूर्य, एक भूमि आसमान। उसमें हमें क्या समझूती मिलती है, तो हम समझने का प्रयत्न। एक जगत एक लोक, यह संसार एक मानव लोक है। कवि क्या कहते हैं कि ये जो संसार है वो एक मानव लोक है। इस दुनिया में रहने वाले सभी लोग एक समान हक के अधिकारी है। रात में एक ही चंद्रमा जो है वो सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। जो चंद्रमा है वो रात में एक ही संसार में सारे संसार में अपनी चांदनी फैलाता है। एक सरखा चंद्रमा का प्रकाश सारे संसार को मिलता है। दिन में एक ही सूर्य है, वो सारे संसार को प्रकाशित करता है। यानी कि जो सूर्य है वो भी सबको एक समान प्रकाश देता है। वो तो भेदभाव नहीं रखते, ठीक है। सूर्य और चंद्र तो भेदभाव नहीं रखते, तो फिर कौन होते हैं जो ऐसा भेदभाव रखने वाले। हमें भी सबको अधिकार देना चाहिए, ठीक है। हम सब एक ही धरती आसमान के नीचे रहते हैं। हम सब एक ही धरती पर और एक ही आसमान के नीचे रहते हैं। नेक्स्ट। एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी। एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। एक तेज एक हवा, यहाँ क्या कवि कहते हैं कि हमें मिलने वाला तेज अर्थात प्रकाश, हमें मिलने वाला जो प्रकाश है, हवा और पानी एक ही है। हम सबको एक समान हवा, पानी और प्रकाश मिलते हैं। हम सबके जीवन में देखते हैं, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, अर्थात हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, अर्थात हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। एक देह एक रक्त एक प्राण। बहुत ही सुंदर पंक्ति है, देखिए। एक रक्त एक अस्थि एक प्राण। हमारे शरीर जो है, हमका शरीर वो भी एक जैसे है। हम सबके खून का रंग भी एक सा है, किसी का ग्रीन किसी का पिंक ऐसा तो नहीं है। हम सबका जो खून है वो खून का रंग भी एक सा है। हमारे शरीर की बनावट एक जैसी है, हड्डियों से हुई है। सबके शरीर की रचना एक जैसी हड्डियों से हुई है। एक समान खून है, हम सबके खून
कैसा है? तो कि हम सबका जो खून है वो एक सा है, हमारे प्राण भी एक जैसे हैं। यहाँ कवि के क्या कहते हैं कि हमें मिलने वाला प्रकाश, हवा और पानी एक ही है। हम सबके जीवन में सुख दुख की भी एक जैसे है। हम सबके जीवन में सुख दुख भी एक जैसे है। हमारे शरीर एक जैसे है। हम सबके खून का रंग, हमारे शरीर की बनावट एक जैसी हड्डियों से हुई है, एक जैसे है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति देखिए। वर्ष भरेगा ये हम राग सुहाने, समता और ममता के गीत तराने, घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े। यहाँ कवि क्या कहता है कि हर्ष भरेगा ये हम राग सुहाने, हम आनंदित होकर सुंदर राग छेड़े, समता और ममता के गीत तराने, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाए। समता अर्थात समानता, ममता अर्थात प्रेम, हम समानता और पारस्परिक प्रेम के गीत गाएं। रात दिन घर घर में यही गीत गूंजे कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। क्या कहते हैं कवि? घर घर में गूंज रहा निस दिन यह मधुर गान। रात दिन घर घर में यही गीत कि हम सब एक जगत एक लोक के निवासी है। ठीक है, नेक्स्ट पंक्ति देखिए। राष्ट्र में ऐक्य ही हमारा, राष्ट्र में ऐक्य ही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का गान। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के वो जो निशान अर्थात झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। यहाँ जो लास्ट पंक्ति है उसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरे संसार को एक कुटुंब समान, एक परिवार समान, वसुधैव कुटुंब की जो यहाँ भावना प्रस्तुत की गई है। एक ही कर्म हमारा, राष्ट्र में एक ही कर्म हमारा, न्याय मानवता धर्म हमारा, हिलमिल के लहराए विश्व शांति का निशान। संसार के ही है हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें। क्या करना है? हम सब जो है मिलजुल कर प्रगति करें है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम अपना ही विकास देखें, सबका विकास करें, सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय न हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। सबके जीवन में जो मानवता है वो विकसित रहे, मानवता जो है वो जीवंत रहे। हम सब मिलजुल कर विश्व शांति के झंडे को लहराए और इस तरह अपनी एकता साबित करें। यहाँ जो आपका यह काव्य है वो पूर्ण होता है। अब देखते हैं स्वाध्याय के जो क्वेश्चन आंसर। तो एमसीक्यू है, तो हम सबका जीवन खाली जगह की, बी ऑप्शन राइट आंसर है, सुख दुख हमारा होना चाहिए। ए ऑप्शन है, हमारा राग सुहाना होना चाहिए। खाली जगह ही हमारा सच्चा, डी ऑप्शन राइट आंसर है, सच्चा धर्म है। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लेकिन अगर कोष्टक न दिया गया हो तो भी काव्य आपने अगर बार बार पढ़ा हो तो आप अपने आप ये जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। खाली जगह है सुख दुख की एक कहानी, तो जीवन है सुख दुख की एक कहानी। हर्ष भरे गाए हम खाली जगह सुहानी, राग। राष्ट्रों में खाली जगह ही कर्म हमारा, ऐक्य।
हिलमिल के लहराए का निशान, विश्व शांति। हम सबके खून का खाली जगह एक जैसा है रंग। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट, तो हम सब मिलजुल कर खाली जगह, तो क ऑप्शन राइट आंसर है। विश्व शांति का झंडा लहराए। प्रकृति लोगों में भेदभाव नहीं करती, इसलिए तो ड ऑप्शन। उपरोक्त सभी कौन कौन से है, तो सबके रक्त का रंग लाल है। हम सबको हवा, पानी और प्रकाश देती है प्रकृति। सबका शरीर एक जैसी हड्डियों से बना है। नेक्स्ट, यह संसार हमारा, यह सारा संसार, तो अ ऑप्शन राइट आंसर है। एक मानव लोक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। हमारा जीवन क्या है? उत्तर, हमारा जीवन सुख दुख की एक कहानी है। हम कैसे तराने गाएंगे? उत्तर, जाति की समता और ममता के तराने गाएंगे। नेक्स्ट, हमारा कर्म क्या है? विश्व के सभी राष्ट्रों में एकता बनाए रखना ही हमारा कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संसार में प्रकृति के कौन कौन से तत्व है? इस काव्य में प्रकृति के तत्व चंद्रमा, सूर्य, भूमि, आकाश, हवा और पानी है। नेक्स्ट, इस काव्य के लिए आप कौन कौन से अन्य शीर्षक देना चाहेंगे? तो उत्तर, हम इसके अलावा काव्य के ये शीर्षक देना चाहेंगे। एक विश्व, नेक्स्ट एक धरा, नेक्स्ट हम सब विश्व, तीनों में से कोई भी रख सकते हैं, ठीक है। हमारा धर्म क्या होना चाहिए? सबकी प्रगति हो, सबको न्याय रक्षा हो, यही हमारा धर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, निम्नलिखित प्रश्नों के हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है, कवि ने क्यों कहा है? सभी मनुष्यों के जीवन में कभी सुख के दिन आते हैं तो कभी दुख के दिन भी देखने पड़ते हैं। किसी का सारा जीवन न सुखी होता है न दुखी होता है। जीवन में बारी बारी से सुख और दुख आते रहते हैं। इसीलिए कवि ने कहा है, हमारा जीवन एक सुख दुख की कहानी है। नेक्स्ट, एक जगत एक लोक, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? उत्तर, यह संसार एक ही चंद्रमा सारे संसार में अपनी चांदनी फैला है। एक ही सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। सभी लोग एक ही धरती पर एक ही इस प्रकार प्रकृति के तत्व हम सब के लिए है। इसीलिए कवि ने एक जगत एक लोक कहा है। अब देखिए, एक रक्त का अर्थ समझाइए। मनुष्य चाहे किसी भी देश, जाति और धर्म का हो, उसके रक्त का रंग लाल ही होता है। रक्त के रंग की समानता से साबित होता है कि पूरी मनुष्य जाति एक है। भले ही हमारे रूप रंग भिन्न हो, पर भीतर से हम सब एक है। नेक्स्ट, घर घर में कौन सा मधुर गान गूंज रहा है? संसार के सभी मनुष्यों के जीवन में हर्ष हो, सब सुहावने रागों में अपना आनंद प्रकट करें। पूरी मानव जाति में एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना हो, ऐसी हुआ मधुर गान घर घर में गूंज रहा हो। अलग अलग है, फिर भी कवि क्यों कहते हैं कि पानी है? उत्तर, सभी नदियों के पानी की वैज्ञानिक संरचना एक जैसी है। सभी नदियों के पानी का मनुष्य के लिए समान उपयोग है। इसीलिए कवि अलग अलग नदियों के पानी को एक ही पानी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगति, न्याय,
और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। संसार के सभी राष्ट्रों में एकता का भाव लाना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सब मिलकर प्रगति करें, सबके साथ न्याय हो, मानवता की रक्षा हो, यही हमारा धर्म बने। नेक्स्ट, विलोम शब्द लिखिए। यहां मैंने कुछ शब्द लिखे, विलोम शब्द अर्थात विरुद्धार्थी शब्द। ठीक है, तो कौन कौन से देखते हैं। विरुद्धार्थी जोड़ी मिलाई तो पास, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, जड़ जीवन अर्थात मृत्यु। विरोधी शब्द देखो, विरोधी शब्द अभी मैं बोल रही हूँ। विरुद्धार्थी के बदले अगर विलोम शब्द लिखे तो भी एक ही अर्थ होता है, विरुद्धार्थी यानी कि विलोम शब्द। चेतन तो जड़, जीवन तो मृत्यु, स्वामी तो दास, प्रकाश अंधकार। समानार्थी शब्द ढूंढकर लिखना है तो लोक, लोक यहाँ मैंने समानार्थी भी कुछ शब्द यहाँ आपको लिख दिए हैं। हाथ पानी, रक्त खून अथवा लहू, ममता प्रेम, प्रगति विकास। नेक्स्ट, निशान चिन्ह संज्ञा, लोक तो विश्व दुनिया, मान सम्मान प्रतिष्ठा, हाथ तो हस्त अथवा पानी, अंबर आसमान गगन नभ। ये सभी अंबर के समानार्थी शब्द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें क्या है, तो पेट में दिए गए कोष्टक में से आपने जो समानार्थी शब्द ढूंढे हैं उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो समानार्थी ढूंढे वो शब्द जो समानार्थी है उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो विश्व तो सारा विश्व एक है। दुनिया, दुनिया में बहुत से देश है। सम्मान, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रतिष्ठा, अच्छे कामों से हमारी प्रतिष्ठा बढ़ती है। चिन्ह, यह किसी के पैर का चिन्ह है। संज्ञा, दरवाजे पर कोई संज्ञा नहीं है। हस्त, हस्त की शोभा दान है। आकाश, आकाश का कहीं उन्नत नहीं है। आकाश का कहीं अंत नहीं है। आकाश का कहीं अंत नहीं है। आप अपने हिसाब से भी अपने वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो मैंने वाक्य बनाए वो ही वाक्य आप बनाए। आसमान का रंग नीला है। गगन, धीरे धीरे गगन बादलों से छा गया। ठीक है, तो जो आपका यह चैप्टर है ये पूर्ण होता है। नए वीडियो में नए यूनिट के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।